وہ جیل میں بیٹھا کالم لکھتا ہے اور چیخیں نکل جاتی ہیں. اسرائیل کو للکارا تھا کہ نہیں, اور 11 تاریخ کو کچھ بڑا ہونے والا ہے. میں بلے کو ووٹ دوں گا, لیکن ویسے 8 فروری کو الیکشن ہو نہیں رہا. اور ایک اور خبر آپ کو دے دوں, میں نے اپنے بلاگ میں کہی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عامر اور آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار رانا عظیم صاحب موجود ہیں. ان سے کچھ سوالات جانیں گے ہم, کیونکہ عوام کو بے تابی سے انتظار ہے کہ جو سیاست کے متعلق یہ بات کرتے ہیں وہ سیاست پہ پوری اترتی ہے. ان کے پاس یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے سوالات ہیں, یہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں, عمران خان ہیں یہ جیل سے باہر آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو کیسے آئیں گے, کیا کوئی ڈیل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں اور ذہن نشین کر لیں. کپتان مر سکتا ہے, کپتان ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل کے لیے تو اب تک 17 کوششیں ہو چکی ہیں. ڈیل کے لیے غیر ملکی سفیر, ڈیل کے لیے پاکستان کے اندر بہت سے لوگ, ڈیل کے لیے بہت سی طاقتیں جو ہیں وہ کام کر چکی ہیں, لیکن کپتان ڈیل نہیں کر رہا. کپتان کھڑا تھا, کھڑا رہے گا. اسے پوری عمر جیل میں رہنا پڑے, اسے جیل کے اندر اپنی زندگی کی بازی ہارنا پڑے, اسے جو مرضی کرنا پڑے, کپتان ڈیل نہیں کرے گا. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے, کپتان باہر آئے گا یا نہیں آئے گا. کپتان پر جتنے الزامات ہیں ان میں سے کوئی ایک الزام ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر آپ اسے جیل کے اندر رکھ سکیں. یہ سارا کھیل صرف 8 فروری کے الیکشن کے لیے ہو رہا ہے. 8 فروری کا الیکشن گزرنے دیں, رزلٹ جو مرضی آئے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے. لیکن ویسے 8 فروری کو الیکشن ہو نہیں رہا. اچھا سر, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان کے علاوہ میں کسی اور کا فیوچر دیکھتا نہیں. دیکھتے کیا ہے, کس جگہ پہ دیکھتے ہیں, کو کیا مقام ہے ان کا؟ اس وقت عوام میں سب سے بڑا لیڈر وہ ہے, وزیر اعظم سے بڑا مقام ہے اس کا. وزیر اعظم. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں لاہور میں شیر کی داڑ ہوگی یا خان کے چھکے لگیں گے؟ خان کے چھکے لگیں گے جی. میں آپ کو ایک بڑا کلیئر کروں کہ لاہور شہر کے اندر اگر شیر دھارتا تو بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد نہ کیے جاتے, بہت سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے نہ مارے جاتے, بہت سے لوگ جو ہیں انہیں گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی جاتی, بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کی جاتی, بہت سی سیاسی جماعتوں کی منتیں تلیں اور التجائیں نہ کی جاتی. شیر جو ہے نا, شیر وہ بیچارہ اب اس کے دانت ختم ہو گئے ہیں تو شیر اب نہیں چلتا. سر جو صنم جاوید ہیں ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے, آپ کیا سوچتے ہیں یہ میرٹ پہ آئے یا پھر کسی کو سیٹ دینے کے لیے, خالی جگہ چھوڑنے کے لیے؟ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. جتنے لوگوں کے کاغذ مسترد کیے, میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں. کل آپ کو پتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک آروس نے جا کے کہا جناب ہم سے جبرن یہ سارا کچھ کروایا گیا ہے, جبرن کروایا گیا ہے. اور یہی کے پی کے میں ہوا. آج کے پی کے میں جب شہید افضل مراوت کے کاغذات منظور کیے گئے, انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہوگا. پہلے میرے جو ریجیکٹ کیے گئے تھے کاغذ اس آرو کو لایا جائے. اس نے 6 بل میرے ذمہ ڈالے ہیں کہ 6 گھروں کے میں نے بل نہیں دیے, میرا تو ایک بھی گھر نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہمارے کچھ موسم جو ادارے ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پہ کرواتے رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی پوری سیاست پہ ایک سوالیہ نشان بن گیا کہ جتنے لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے تھے 95% لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں. اور میں نے یہ اسی دن کہہ دیا تھا جس دن الیکشن کے کاغذات مسترد ہوئے تھے, اور میں نے ڈیٹ بھی دی تھی, وہ ڈیٹ تھی 8 اور 11. میں نے کہا تھا یہ 2 تاریخیں بڑی اہم ہیں, اور ان تاریخوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا. آج بھی بڑی اہم تاریخ ہے اور آج تقریباً لوگوں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, اور 11 تاریخ کو کچھ بڑا ہونے والا ہے. کچھ بڑا ہونے والا. اچھا سر, ایک طلب سوال ہے جو بہت کم لوگ پوچھتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا, آپ اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ 9 مئی کو کچھ ہوا تھا, اس پہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو نااہل کیے جا رہے ہیں, جو جیل میں ڈالے گئے. میں 9 مئی کو جن لوگوں نے آگ لگائی ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے, جن لوگوں نے آگ لگوائی ان کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے, جو لوگ سیکیورٹی میں موجود نہیں تھے ان کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. 9 مئی ایک کالا سیاہ دبا ہے, اس کو دھونے کے لیے اس کے جتنے بھی ملزمان ہیں آگ لگانے, لگوانے, انہیں وہاں تک پہنچانے, انہیں راستہ دینے, انہیں راستہ دکھانے, ان سب کو پکڑنا چاہیے. اچھا سر, آپ پی ٹی آئی کے لیے بے باک بولتے ہیں. مجھے نہیں, میں پاکستان کے لیے بولتا ہوں.
मेरा आपसे सवाल है, आवाम का भी कुछ लोगों का सवाल है जो शायद आपको ना पसंद करते होंगे कि आप सहाफ़ी हैं या टाइगर। अच्छा, जो मुझे पसंद नहीं ना करता मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर आपको सारे पसंद करना शुरू कर दें ना तो इससे बड़ी मुनाफत कोई नहीं होती। ना मैं टाइगर हूँ, ना मैं यूथिया हूँ, ना मैं पटवारी हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। और मैं जो बात करता हूँ मैं चैलेंज से कहता हूँ, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे कहें। क्या पाकिस्तान के अंदर हर आदमी को, चाहे वो यूथ का था, चाहे वो पटवारी था, चाहे वो शिकारी था, चाहे वो खिलाड़ी था, चाहे वो लकारी था, क्या उस शख्स को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिया था कि नहीं? क्या पाकिस्तान की मसाजिद के इमाम जो थे उनके लिए बेहतरीन पैकेज इमरान खान ने दिया था कि नहीं? क्या इस्लामी मतलब इस्लामियात की जो बुक्स है और कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दी थी कि नहीं? क्या अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साथ साथ आलम इस्लाम की बात की थी कि नहीं? क्या इसराइल को ललकारा था कि नहीं? फिर किसकी बात करनी चाहिए? उसकी बात करनी चाहिए या इसराइल की गोद में बैठने वाले की करनी चाहिए? तो मुझे आप सर ये बताएं, फिर आप 8 तारीख को किसको वोट दे रहे हैं अगर इलेक्शन होती हैं? देखिए, मैं एक सहाफ़ी हूँ, सहाफ़ी के साथ रख के हक के राय दही इस्तेमाल करना मेरा फ़र्ज हक भी है। मैं बल्ले को वोट दूंगा, कोई दूसरी राय नहीं। आप जो भी खबर देते हैं वो पूरी पूरी उतरती है, किसी के पास चिड़िया है, किसी के पास कबूतर है, आपके पास कौन सी चीज़ है जो आपको खबर ला के देती है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मैं शुरू करता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ के। आप भी शुरू किया करें, खबर आपको खुद ही मिल जाए। आप बोलते हैं, अभी बात बोलते हैं कि कभी आपको भी किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आई? तो ये पुरानी बात, तो कालें इतनी आ गई, इतना सुन के, इतना डर डर के, गाड़ियों को टकराव का हर सब कुछ करके उनके में देखें। पॉलिटिकल जमात के हक में या मुखालफत में बोलना मेरा फर्ज है, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ में पाकिस्तान के इदारों पे कभी ना तनकीद की है ना करता हूँ। ये फौज मेरी है, फौजी जवानों की, खासकर शोहदा की फैमिलियों को मैंने देखा है और उन्होंने ये कुर्बानियाँ हमारे लिए दी। मुल्क की फौज मजबूत होगी, हम मजबूत हों। शख्सियात से आपका इख्तलाफ हो सकता है, इदारों से इख्तलाफ नहीं करते। तो अगर मैं नवाज शरीफ के खिलाफ बोलने पर मुझे कोई कॉल आती है और अगर किसी और के खिलाफ बोलने पर कॉल आती है तो फिर तो हवा कर देना। तो दूसरी बात है, जब आपने सच बोलना हो ना तो ये मत सोचा करें कहाँ से कॉल आती है, कहाँ से नहीं। आप मुझे ये बता दें सर, मैं आपसे सवाल करता हूँ, सुनने वाले सारे दोस्तों से सवाल करता हूँ, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसका हिसाब तो है क्या? हकूकुल बात तो माफ़ी नहीं मिली। हदीस मुबारक है, ला ईमान अलिमल्ला अमानत लो, वो शख्स का ईमान नहीं जो अमानतों में ख़यानत करता है। ये आपके पास माइक क्या है? अमानत है। आपका चैनल, आपका सच बोलना, सब लाना अमानत है। और अगर आप अमानत में ख़यानत करके इस डर से तो कि अगला तगला है, मुझे मारेगा, मुझे नुकसान पहुँचाएगा, तो फिर तो आपका ईमान नहीं है ना। ईमान की मजबूती रखें इंशाल्लाह। और ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है, इस पर भी बेफिक्र है। मुझे वो कोई ऐसा शख्स बता दे जो ये कहे कि मैं बिल्कुल घर के अंदर मौजूद रहूँगा, मुझे मौत नहीं आएगी। माइकल जैक्सन ने दुनिया की कौन सी चीज़ नहीं की, क्या उसे मौत नहीं आई? बस अल्लाह खैर करे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको लगता है कि जो पीटीआई को बल्ला वापस मिल जाएगा? फैसला अदालत में जा चुका है। अगर पीटीआई को बल्ला वापस मिल, देखें आईनी कानून, आइन और कानून ये कहता है कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा। ये आइन और कानून कहता है। अगर आप आइन और कानून की बात करते हैं, किसी जमात को कालादम करार देने के लिए एक रेफरेंस पेश होता है जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी समाअत करती है, उसके बाद उस जमात को ख़त्म करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना होता है। कोई रेफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इनके जहन में है बहुत से लोगों के कि बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर हम जीत जाएंगे। कप्तान ने ना 3 और प्लान भी तैयार कर रखे हैं, अभी मैं बताऊंगा नहीं, तो उस प्लान के तहत वो इन सब को ले जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जब इमरान खान को लॉन्च किया गया तब ये ज़बरदस्ती लाया गया। जो लोग ये कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं उनको मैं दावत देता हूँ, आए मैं उनको 20 साल पुराने बेल्ट पेपर दिखाऊंगा। सर मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान में किस सियासतदान से देखते हैं? कोई उसके मुकाबले में आ ही नहीं रहा। क्या नवाज शरीफ ने इमरान खान के मुकाबले में कागज जमा करवाए? क्या एमन वली खान ने कराए? परवेज खटक ने कराए? मौलाना फजलुर रहमान ने कराए? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराए? तो यही तो जीत है। वो जेल में बैठा कॉलम लिखता है और चीखें निकल जाती हैं। कल उसने फंड रेजिंग के नाम पे काम शुरू किया तो आपने पूरे पाकिस्तान का नेट बंद कर दिया। यही हुआ ना, एक अकेला शख्स जेल में बैठ के आपके लिए अजाब बना हुआ है, तो वो बाहर आ गया तो फिर किससे मुकाबला? जेल में मुकाबला नहीं है उसके साथ, तो बाहर क्या करेगा? आप मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन होती हैं तो पीटीआई किस हद तक पाकिस्तान में मकबूल है और कितने वोट ये ले सकती है? मैं आपको ये चैलेंज से कहता हूँ, अगर मुनसफाना इंतखाबात होते हैं तो पीटीआई का मुकाबला करने वाली जमातों को एडवांस 20-20 हज़ार वोट उनके डब्बों में डाल के ना मुनसफाना इलेक्शन करा दें।
तो राणा साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ लास्ट पे, चलिए ये सवाल ऐड करता हूँ कि आप बता देंगे अगर लास्ट को 8 को इलेक्शन नहीं होते तो कब होंगे? फिर वो होता है ना, वो ट्रेन जो छूट जाती है ना, चली जाती है, तो उसके बाद इंतजार होता है कि अगली ट्रेन आएगी या नहीं आएगी। तो कई दफ़ा भी पता लगता है कि अगली ट्रेन का टाइम ही नहीं है, फिर आप भूल जाए, फिर आप इंतजार करें लंबा, फिर आप लंबा इंतजार करें। अगर 8 को इलेक्शन ना हुए तो फिर लंबा इंतजार करें। और एक और खबर आपको दे दूं, अगर 8 को इलेक्शन हुए तो म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं होंगे, और वो इलेक्शन बहुत कम अरसे के लिए होंगे। और एक और खबर आपको दे दूं, मैंने अपने व्लॉग में कहनी थी, 8 को अगर इलेक्शन हो गए, जो भी सियासी जमात जीती उसका पहला तोहफा महंगाई होगी, और महंगाई में बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। ये आपको बता दूं। सर जो लोग पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की मैशियत ठीक हो, गरीब को इंसाफ मिले, रोजगार मिले, उनको आप क्या कहेंगे? वो किस पार्टी को सपोर्ट करे, किसको वोट दें? मैं उसको पार्टी कोई नहीं कहता, मैं उनको कहता हूँ जो करप्ट लोग हैं उन्हें एक जहाज में बिठाए और समंदर में फेंक दें। नहीं, आपकी नजर में वो किसको वोट दे ताकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बेहतर हो? मैं इसमें पार्टी बनना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने करप्शन की उनको पता है, ठीक है, उनको एक जहाज में उठाएं और समंदर में फेंकें सर्दी में, उनसे तो जान छूटे ना हो। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार राणा अज़ीम साहब, जिनके पास ना कोई चिड़िया है और ना कोई तोता है और ना ही कबूतर है। उनका कहना है कि मैं जब अपने नबी का नाम लेके शुरू करता हूँ तो खबरें मेरे पास खुद आ जाती हैं। और जो करप्ट माफिया जो पाकिस्तान में, उन्हें अगर हम वोट देते हैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो तबाह होने वाला। और आपको सबको पता है कि जो करप्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का जो माजी था बर्बाद किया, अगर आप उनको फिर लाते हैं तो वो पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेंगे। तो खुदारा आपने कुछ लोग हमने देखा है कि वो कहते हैं कि हमने वोट नहीं देना। वोट देना आप पर फर्ज है, आपने अगर वोट नहीं दिया तो इसका भी आपसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। तो खुदारा सर्च करें, जो लोग पाकिस्तान के फ्यूचर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर, उन्हें वोट दें ताकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का जो यूथ है उन्हें रोज़गार मिले, वो खुदकुशी ना करें, जो गरीब को रिस्क मिले, घर मिले, मकान मिले और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। आप अगर राणा अज़ीम साहब को पसंद करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इनको पसंद नहीं करते तब भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा।